morning. आवाज आ रही है? Can you get my voice? आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Switch on your videos. Everyone, let's start the class. Switch on your videos, everyone, fast. Let's start the class. आप लोग का एग्जाम का डेट आ गया है ना? Yes? No? Is Is there any network issue or is everyone getting this? Is everyone getting my voice? मैम थोड़ा कट क्या रहा है मैम? Yeah. Okay. Okay. Is it better now? Yes, ma'am. Connected it through WhatsApp. So rest everyone, please switch on your cameras. Let's start the class. Motivation theories we were doing, and out of those motivation theories we have completed, we were doing content theory of motivation. Which all theories we did in content theory? Tell me, क्या cover किया हमने? We have covered Abraham Maslow's need hierarchy theory, right? Yes, ma'am. We have covered David McClelland 3 needs theory. Yes, ma'am. We have also covered one more theory. Is X and Y theory in your syllabus? I don't think McGregor's X and Y theory is in your syllabus. There's another theory called ERG theory, right? That is there in your syllabus, ERG theory. Today we will do ERG theory. Did you check out your group? I have sent a picture there. Did you check out in the morning? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just look at the picture. Just look at the picture. It is like, this picture is like a square or rectangle, whatever you can suppose. And it is divided into 3 hierarchies. What is the lowest most hierarchy? Which is the lowest most in the hierarchy? Existed needs. Existence Needs. needs. Okay. Next is relatedness needs. And the topmost is growth needs. Okay. देखिए, ये जो theory है, ये this theory can be considered to be an extension of Abraham Maslow's need hierarchy theory. We will quickly revise what is Abraham Maslow's need hierarchy theory. ये आपको यूनिवर्सिटी में इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आता है. यूनिवर्सिटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन Abraham Maslow's need hierarchy theory and ERG theory. तो इन दोनों थ्योरीज को साथ में समझना होगा, इनकी सिमिलैरिटीज भी समझने के लिए और इनका डिफरेंस भी समझने के लिए. ओके, पहले
फटाफट आप रिवाइज करके बताइए कि अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या है। फर्स्ट में साइकोलॉजिकल नीड आता है। तुम लोग साइकोलॉजिकल बोलना नहीं छोड़ोगे ना? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हायर नीड होती है, साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। लिख दोगे तो एकदम जीरो हो जाएगा ये। फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स this is related to the metabolism kind of thing, the basic things, the basic needs of life is counted in physiological need. Okay, so tell me, what is Abraham Maslow's need hierarchy theory? Ma'am, first of all, physiological needs, safety needs, social needs, self-esteem, and self-actualization. Ma'am. ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बताती क्या है, क्या बोला गया है इस थ्योरी में? For those of you who have just for those of you who have just joined, let me tell you, in this class we are doing ERG theory given by Clayton Alderfer. ये आपके सिलेबस में है, और ये जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी डायरेक्ट पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि ERG थ्योरी के बारे में लिखिए. Sometimes it is asked as draw comparison and contrast between Abraham Maslow's need hierarchy theory and Clayton Alderfer's ERG theory. So to understand this and write the answer accordingly, you need to understand the similarities and dissimilarities between both these theories. अब बताओ, Abraham Maslow की need hierarchy theory में क्या बताया गया है? मैम, सबसे पहले तो वो उनका बेसिक, किसी भी व्यक्ति के लिए बेसिक नीड जरूरी होता है. फिर उसके बाद उनको सेफ्टी चाहिए. फिर उनको सर मैम वो फिर उनको सोशल नीड्स की आवश्यकता होती है, जैसे लव, एफेक्शन, ये सब जरूरत होती है उनको, वो चीज. फिर एक हायर पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो खुद से मैम वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंच जाते हैं मैम. चलो ठीक है, ये 5 याद है, हम अभी I'll tell you. What did Abraham Maslow की थ्योरी इसलिए रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि ERG थ्योरी कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ Abraham Maslow's need hierarchy theory. ये दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, but you need to understand. See, Abraham Maslow's need hierarchy theory says that Abraham Maslow believed that the motivation comes from the needs of human being. It is our needs which keeps us motivated, and these needs should be taken good care of by the organization. If they care about our needs, if they take care of our needs, they can get highly motivated employees. Now, a highly motivated employee is a person who is like an asset to the organization because he will work with full efficiency. There are other factors also which come as a gift, to the organization when their employees are motivated. कैसे needs के बारे में बात हुई? The first need was the basic need, right? The physiological need. The physiological need. The next one was, इसका details हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है समझने के लिए. Physiological need. Then you had the safety and security needs. Then you had the social needs, which is also called the belongingness need. Then you have the higher order needs. Higher order needs में क्या क्या आया? Self-esteem and self-actualization. अब देखो, ERG theory can be considered, ये 1963 के आसपास theory आई है, and this theory can be considered to be an extension of Abraham Maslow's need hierarchy theory. ERG theory में कुछ modification किया गया. जैसे अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि नीड को उन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर कट तरीके से डिफाइन किया था, और उनका ये मानना था कि जब तक इंसान की या एम्प्लॉयज की एक नीड पूरी नहीं होती है तब तक दे डू नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, है ना.
बट ERG थ्योरी में इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और ये बिलीव किया गया कि नो, it could be a chance that you might not be fully accomplished with one need, you still can be looking for the other need while you are at the same position in the hierarchy. Okay, ये समझ में आया किसी को? मैम फिर से एक बार। देखो ये फिगर देखो जो हम तुम लोगों को भेजे हैं, एग्जाम में आएगा ERG थ्योरी, तो ये फिगर जरूर ड्रॉ करना। पहला जो हायरार्की है वो एग्जिस्टेंस नीड्स है। अब देखो अब्राहम मैस्लो ने ये बोला कि नीड बहुत क्लियर कट डिफाइंड है, यानी कि जब तक कोई एक नीड तुम्हारी पूरी नहीं हो जाती है तब तक एम्प्लॉयज दूसरे लेवल पे मूव ऑन नहीं करते हैं। यही था अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। लेकिन ERG थ्योरी जो क्लेटन एल्डरफोर्ड ने दिया, उनका ये मानना था कि जरूरी नहीं है कि जबकि तुम अगर किसी एक लेवल ऑफ हायरार्की पे हो तो तुम्हारी वो नीड पूरी हो जाएगी तभी तुम दूसरे लेवल ऑफ हायरार्की पे जाओगे। मतलब जो सबसे नीचे हायरार्की पे नीड है एग्जिस्टेंस नीड, उसको देखो। इस एग्जिस्टेंस नीड में क्या क्या आता है? इसमें आता है अब्राहम मैस्लो का फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड। ठीक है, लिख लो आप। ये फिगर ड्रॉ करो और इस फिगर के बगल में लिखो एग्जिस्टेंस नीड्स में लिखो। एग्जिस्टेंस नीड्स में क्या क्या आया? फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी। हाँ, फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी। तो तुमने देखा जहां अब्राहम मैस्लो ने उसको दो लेवल पे डाला था कि जब तक फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप सिक्योरिटी नीड के बारे में सोच ही नहीं सकते। ERG थ्योरी में इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया कि ये दोनों सेम ही लेवल पे हो सकता है। एग्जिस्टेंस नीड्स में आया फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड। उसके ऊपर देखो रिलेटेडनेस नीड। रिलेटेडनेस नीड में आया, ERG का फुल फॉर्म यही है, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, जो लेवल बना हुआ है। ठीक है, रिलेटेडनेस नीड में आया बिलोंगिंगनेस नीड और सेल्फ एस्टीम। लिख लो belongingness need and self esteem। ओके, और ग्रोथ नीड में क्या क्या आएगा बताओ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दोनों इसी में आएगा। देखिए सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये देखो, ये बताओ कि पैसा किस नीड में आता है? पैसा किस हायरार्की में आएगा? बेसिक नीड है। बेसिक नीड में कौन सा लेवल? इस थ्योरी को देखो, इस फिगर को देखो और बताओ। पैसा क्या होता है? बेसिक नीड होता है, सुमन ने बोला राइट? यस यस मैम। हाँ, बेसिक नीड किस में आएगा इस लेवल में? एग्जिस्टिंग नीड्स। हाँ, एग्जिस्टेंस नीड में आएगा। वेरी गुड, एग्जिस्टेंस नीड में आता है। इसके कहने का मतलब, तो इस थ्योरी में ERG थ्योरी में सिमिलैरिटी क्या क्या है अब्राहम मैस्लो और ERG थ्योरी में? ये सिमिलैरिटी है कि जिन नीड्स की बात अब्राहम मैस्लो ने की, वही नीड्स की बात ERG थ्योरी में भी क्लेटन एल्डरफोर्ड कर रहे हैं। Okay, Clayton Alderfer is also talking about the same set of needs, but the contrast is that he believes that you could be at one level and still seek something from other level, need from other level। यानी हो सकता है कि तुम existence level पे हो, existence need पे हो, and you are looking for money, you are looking for belongingness, and also you are looking for growth in your career options all at the same time।
समझ में आया? यस मैम। ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? तो ये थ्योरी नहीं समझोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक बार और मैम। ठीक है, सी ERG थ्योरी को, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी समझ में आ गई सबको? यस मैम। उसका लेवल समझ में आ गया। अब इसका लेवल समझो। ERG में 3 हायरार्की में डिवाइड किया गया है। द लोएस्ट हायरार्की इज एक्जिस्टेंस नीड्स, देन रिलेटेडनेस नीड एंड देन ग्रोथ नीड। एक्जिस्टेंस नीड्स में आता है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल नीड और क्या, सिक्योरिटी नीड। ओके, रिलेटेडनेस में आता है बिलोंगिंगनेस नीड और सेल्फ एस्टीम। ग्रोथ नीड में आता है सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हायर ऑर्डर नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो डिफरेंस क्या है। अब्राहम मैस्लो ने ये माना था कि जब तक किसी की एक नीड पूरी नहीं हो जाती है, दे डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। यही था उनका बिलीफ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग? यस मैम। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर देना। बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है। The other teacher has also taken class. अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि जब तक आपकी एक नीड पूरी नहीं होती है, यू डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन ERG थ्योरी में क्लेटन एल्डरफर ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यू कुड बी एट वन लेवल एंड यू कुड सीक द नीड्स ऑफ अदर लेवल। यानी कि पहला डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि तुम एग्जिस्टेंस नीड्स के लेवल पे हो, यू आर एट दिस लेवल, और तुम ग्रोथ सीख कर रहे हो और तुम बिलोंगिंगनेस नीड सीख कर रहे हो। ऐसा हो सकता है ना कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम नीचे लेवल पे हैं, लेकिन हमको सोशलाइज होने का नीड हो, राइट? यस मैम। छुट्टी लेने का नीड हो, छुट्टी लेकर के सोशलाइज करेंगे आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। यू नीड योर दैट नीड can surface even when you are earning money at the existence needs, यस मैम। right? यस मैम। ये एक डिफरेंस है अब्राहम मैस्लो और ERG थ्योरी में। दूसरा डिफरेंस, इस फिगर को ध्यान से देखो। एक एरो लेफ्ट में है which denotes satisfaction और progression। ये दिख रहा है? एक बार फिर पहले डायग्राम देखो। Just check it out and tell me. एक देखो अपवर्ड एरो है जो सेटिस्फैक्शन और प्रोग्रेशन बता रहा है। तो इसमें क्या करना है, ये एक्चुअली बॉडी आवाज आ रही है तुम लोग को? यस मैम। पहला हम बीच में डिफरेंस रुक ये गया था। था। हाँ, पहला डिफरेंस ये है अब्राहम मैस्लो और ERG ने ये कॉन्ट्रास्ट समझो कि पहला डिफरेंस ये है कि you could be at one level and still seek and still be motivated by the need of other level। जैसे कि you could be at the existence level and still you could be wanting to have this need fulfillment of belongingness need and उसके ऊपर ग्रोथ करनी। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? ये फिगर देखा तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, क्या है? एक अपवर्ड एरो है ना सेटिस्फैक्शन का या प्रोग्रेशन का? सेटिस्फैक्शन का वर्ड है। ठीक है, और डाउनवर्ड एरो किसका है? फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में आया तुम लोग को? हम अगर एक कैटेगरी से एक इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो लोअर लेवल पे भी आ सकते हैं। वेरी गुड।
एग्जैक्टली दिस इज द मीनिंग। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि अगर तुम्हारा करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम चाहते हो डेफिनेटली कि आगे बढ़ना, लेकिन अगर तुमको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो क्या तुम नौकरी छोड़ दोगे? No, ma'am. नहीं छोड़ते हो ना? दिस इज द सेम थिंग विच हैज बीन सेड, और ये बहुत रेलेवेंट थ्योरी है मोटिवेशन की। एक्चुअली ये फॉलो किया जाता है। देखो, जो अपवर्ड एरो है वो सेटिस्फैक्शन का एरो है। इसका मतलब कि ठीक है, लेवल बाय लेवल हायरार्की में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर वो सब कुछ सही चला तो देयर इज अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपके दिमाग में रहेगा, साइकोलॉजी में रहेगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन या प्रोग्रेशन, यानी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम हाई लेवल पे या तुम्हारा कोई नीड, हायर ऑर्डर नीड फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा नीड फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है? तुम्हारे में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेशन आता है, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द लोअर लेवल एंड कीप वर्किंग। ये समझ में आया? जस्ट व्हाट आशीष सेड इज राइट। Did you get this? कि अगर Yes, आपका ma'am. हायर ऑर्डर नीड फुलफिल नहीं होता है तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिग्रेशन आता है, जिसको कि तो आप क्या करेंगे? हायर ऑर्डर नीड्स आपकी पूरी नहीं हुई, यू सेटल डाउन विद द लोअर ऑर्डर नीड्स इन द थ्योरी सेज दैट यू सेटल डाउन विद द लोअर ऑर्डर नीड्स एंड यू कीप वर्किंग। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही डिफरेंस है, ये कॉन्ट्रास्ट है अब्राहम मैस्लो में और ईआरजी थ्योरी में। ईआरजी थ्योरी इतनी ही है। Now when you go back and read that, you will understand कि ERG theory is an extension of Abraham Maslow's need hierarchy theory, where Abraham Maslow very sharply demarcated the needs into different hierarchy, like the lower being physiological need, security need, social needs, self-esteem, self-actualization, and he believed in the fact that only when you are done with your lower order needs, you move towards the higher order needs. Okay, this is the point. But ERG theory behaves like, and this theory behaves in a way that can be said to be an extension of Abraham Maslow's theory. ERG stands for existence, relatedness, and growth needs. In existence needs, there are two needs of Abraham Maslow's theory, that is the physiological need and the security need. The relatedness need has belongingness need and self-esteem need. The topmost, which is the growth, has self-esteem and self-actualization need. अच्छा, self-esteem का क्या मतलब होता है? सेल्फ ग्रोथ में An individual is in a stage of gaining respect, recognition. ये होता है, ये आप अप्रोप्रिएटली इसको ये बोल सकते हैं। देखो, सेल्फ एस्टीम पे जब भी तुम बात करोगे तो सेल्फ एस्टीम को दो एस्पेक्ट से तुम देख सकते हो। वन एस्पेक्ट वुड बी कि इट इज द नीड ऑफ अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ। आप कॉन्शियस होते हैं कि आपको अपने बारे में एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट, एक पॉजिटिव इमेज का नीड होता है। हम सब लोगों को होता है ये। और दूसरी चीज कि ये तो सेल्फ के बारे में बात हो गई, लेकिन सेल्फ एस्टीम में ये भी होता है कि हमको वो रिस्पेक्ट दूसरों से भी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे वो चीज नीड चाहिए। इस नीड को कैसे पूरा किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? कोई आइडिया? सी, तुम अगर किसी ऑफिस में जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बाकी लोगों का छोटा कैबिन है और किसी एक बंदे का बड़ा स्पेशियस केबिन है, वो केबिन डेकोरेटेड है, वो केबिन वेल फर्निश्ड है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है ये बताओ? हायर पोजीशन पे होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में या रिस्पेक्टेड पर्सन होगा। वेरी गुड, यही चीज
कि तुमको ये लगेगा कि ये थोड़ा रिस्पेक्टेड पोजीशन पे होगा, भाई कुछ तो बड़ा करता होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी इसको बड़ा कैबिन मिला है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ फुलफिलिंग सेल्फ एस्टीम नीड ऑफ पीपल. इसमें होता ये है कि आप एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ किसी चीज को कर सकते हैं ये रिस्पेक्टेड फील कराने के लिए. जैसे बाकी लोगों का कैबिन नहीं है, आप किसी को एक अपना पर्सनल कैबिन दे दीजिए, स्पेशियस कैबिन दे दीजिए, एक कंपनी की कार दे दीजिए, या ऐसा कोई भी स्टेप कीजिए जिससे कि उसको ये फील हो कि वो दूसरों से अलग है, वो दूसरों से रिस्पेक्टेड है, वो दूसरों से पॉजिटिव इमेज कंटेन करता है. Okay, so whenever you talk about self-esteem need, always talk from two different directions. One, that you are in need of your positive image, your positive respect, and second is that you need that respect from the others also. बाकियों से भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नीड होता है, इसीलिए सेल्फ एस्टीम नीड इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, और ये हायर ऑर्डर नीड होता है. When you have enough money, you have had security, then you go for this higher order need. Okay, तो दोनों चीजें आपने कॉन्ट्रास्ट में समझी कि अब्राहम मैस्लो और ईआरजी थ्योरी में ये है कि अब्राहम मैस्लो ने बोला कि बहुत क्लियर पर डिमार्केशन होता है हायरार्की का, कि जब तक एक हायरार्की आपने की नीड कंप्लीट नहीं की है तब तक यू कैन नॉट मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट लेवल. बट ERG theory does not believe this. ERG theory says that maybe you are at one hierarchy level and you could be motivated by the need of the other hierarchy. Okay, like you could be earning money, you could be at the existence need and still be wanting to go for growth, still be wanting to fulfill your need of belongingness. ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट क्या हुआ? देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेशन जो मैस्लो ने मेंशन नहीं किया है. जरूरी नहीं है कि आपका जो नीड है वो फुलफिल हो ही जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो नहीं होगा तब क्या होगा, इसकी बात तो अब्राहम मैस्लो ने नहीं की है. दिस एलिमेंट हैज बीन एडेड इन ईआरजी थ्योरी. ईआरजी में क्लेटन एल्डर्फर ने ये ऐड किया कि अगर आपकी नीड पूरी नहीं होती है तो what happens is that you shift towards the lower level of hierarchy. Okay, and you settle down with it. Of course you will be frustrated, of course that is a regression in your career, but then you settle down at the lower level and you keep working, right? क्योंकि हमारा अगर हायर ऑर्डर नीड पूरा नहीं होगा, अगर हमारे क्यूबिकल नहीं मिलता है, हमको कंपनी की कार नहीं मिलती है, तो क्या हम नौकरी छोड़ देंगे? नहीं होता है ना ऐसा. So this is like a more rational, this is like a more pragmatic approach towards the needs of human beings. Understood? समझ में आया ERG theory? Yes. दिस इज ERG theory. आप जब भी ERG theory पढ़ेंगे तो आप इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अब्राहम मैस्लो के साथ करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी लिखने के लिए आता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अब्राहम मैस्लो थ्योरी विद ERG theory. पहले ERG theory लिखना, डायग्राम बनाना सबसे पहले, उसके बाद ERG theory के बारे में लिखना, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट दोनों को अलग अलग करके अच्छे से आंसर राइटिंग करना इन दोनों थ्योरीज के बारे में. With ERG theory, we have completed content theory of motivation. जो भी तुम्हारा कंटेंट थ्योरी में था, जैसे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई, वो शायद तुमको नहीं पढ़ना है. आई डोंट थिंक वो तुमको पढ़ना है. और डेविड मैक्लेलन की 3 नीड्स थ्योरी और ERG थ्योरी, ये था तुम्हारे कंटेंट थ्योरी में. अब प्रोसेस थ्योरी में है तुम्हारा, प्रोसेस थ्योरी में है विक्टर विलियम्स थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, and there is one more theory. Okay,
Yes, there are 3 main theories. Process theories छोटी है पर बहुत important theories हैं, बहुत pragmatic theories हैं, तो gradually we will cover that. उसके बाद एक topic तुम्हारा बचेगा employee satisfaction का, and then एक पूरा unit है जो HRD है. अब HRD पढ़ने में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम पूरा syllabus cover हो जाएगा by that time. Okay? So, someone please tell me Abraham Maslow और ERG theory का compare and contrast बताओ, जो भी बताएं तुम लोग को. हम एक दिन में एक से ज्यादा theory नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा theory को time लेके समझो, समझ में आएगा. ERG समझ में आया कि नहीं? बोलो. Yes, ma'am. Who would like to answer? ERG theory बताओ. Yes. Ashish, would you like to say? Just try. अभी जो theory बताए हम ERG theory, कौन बताएगा? I mean, ERG theory हम existence level पे means 3 कैटेगरी होता है, existence, relative और growth. Existence पे आता है basic needs और security needs, और relativeness पे आता है social self esteem, और growth पे आता है self actualization और self esteem. और डिफरेंस क्या है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी और ERG थ्योरी में? मैम, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में था कि हायरार्की बना हुआ था कि लोअर लेवल से अपर लेवल के ऊपर जाना है, लेकिन बट ERG में अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उस सिचुएशन पे तो वो लोअर लेवल पे लाइक रिग्रेस कर सकता है लोअर लेवल पे भी. वो उसकी मजबूरी होती है कि वो एक काइंड ऑफ रिग्रेशन आता है, उसको काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है, बट they have no option other than going down the level and settling at lower level of hierarchy, fulfilling them with the lower order needs. ठीक है, एक और डिफरेंस बताए ना अभी, वो बताइए. एक और डिफरेंस कोई और बताएगा आशीष को छोड़ के? तो मैम वो था कि मैस्लो डायरेक्टरी की थ्योरी में ये था कि मैम जब एक नीड पूरा होगा तभी वो अगला नीड की तरफ जाएगा मैम. यस मैम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है मैम. ERG थ्योरी में ऐसा नहीं है कि वो अगर एक नीड पूरा नहीं होगा तो वो दूसरे में नहीं जाएगा उस तरह से. ठीक है, ऐसा नहीं है. ऐसा ये होगा कि क्लेटन एंड रल्फर ने ये कहा कि you could be at the lowest level, you could be at a lower level and still be motivated by the needs of the other level, right? जैसे आप existence need पूरी कर रहे होते हैं उस समय आप पैसा कमा रहे होते हैं, but maybe you are seeking growth at the same time, you are motivated by the need of belongingness at the same time. Understood? ये दोनों डिफरेंस है. देखो, प्रोसेस थ्योरी, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ये सब पढ़ा. कंटेंट थ्योरी में क्या क्या है? जैसे कंटेंट थ्योरी में अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, ERG थ्योरी, डेविड मैकक्लेलैंड की 3 नीड्स या एक्वायर्ड थ्योरी, उसके बाद दे हैव दिस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी. ये कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है. और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ये जो होता है ये पीपल ओरिएंटेड है एंड प्रोसेस थ्योरी इज वर्क ओरिएंटेड. 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा ना, मतलब आप लोग ऑफलाइन आएंगे? यस मैम. ओके, इट विल बी बेटर. हम अभी से बता देते हैं, मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 4 दिन 4 थ्योरी है. देखते हैं कितना टाइम लगता है. 4 थ्योरी है तुम लोगों का प्रोसेस में, या 3 थ्योरी है, विक्टर ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी और इक्विटी थ्योरी है और एक और थ्योरी है. इसके बाद आप लोग एक पीपीटी बनाइएगा. ये पीपीटी सबको एक ही पीपीटी नहीं बनाना है. आई विल गिव यू एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना और एक क्विज कराएंगे तुम लोगों का मोटिवेशन के ऊपर. ठीक है, सो दैट कि आप उस बहाने से अच्छे से पढ़िएगा ये थ्योरी और थोड़ा डिटेल्स पढ़िए कि
हर थियोरी के नीचे अंदर क्या है, ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो। थियोरीज में काफी कुछ नीड्स वगैरह मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्विज होगा, तो क्विज का मतलब आई विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चंस, ओके, यू विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर पीयर्स। आप अपने ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड से 2 टीम्स डिवाइडेड होंगी आप, लेकिन ये जब आप यहाँ आइएगा तब हम कराएंगे। मोटिवेशन टॉपिक रहेगा, इसमें क्विज कराएंगे हम, जब ये 2 टीम्स में डिवाइड करेंगे। यू विल प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर योर टीम, द अदर टीम विल प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर देमसेल्व्स, एंड देन यू विल टेक दैट काइंड ऑफ क्विज। आप क्वेश्चंस पूछेंगे और उसमें हम मार्किंग करेंगे। अंडरस्टूड? इस बहाने से आप थोड़ा सा, हाँ, इस बहाने से आप थोड़ा पढ़िएगा। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि पीपीओ के सिलेबस में एचआरडी जो तुम लोगों को जो भी सिलेबस में दिया गया है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ये अच्छी बात है कि तुम लोगों को एचआरडी ऐड किया गया, क्योंकि ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है और ये कई जगह पे सिलेबस में एचआरडी में इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना होता है, बट that is very detailed in your syllabus, and motivation is a very important chapter. आगे भी आप अगर एमबीए करेंगे तो स्पेशलाइजेशन कुछ भी लेंगे, बट कॉमन सब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रहता ही है, और अगर रहेगा तो उसमें मोटिवेशन रहता ही रहता है। और जो लोग एमबीए एचआर करेंगे, अगर आगे करने का मन है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर होगा। जैसे हमको ऑर्डर आप रात में आप सॉरी वो कॉपी नहीं बना सकते। Let me take your attendance. मान लीजिए और बना Next class we'll start with next theory. अच्छा ठीक है, 25-50 तक का नीड आया इमरजेंसी में तो पूरा 100 200 400 का तो मैं मैनेजमेंट को बोल सकती हूँ, राइट? एंड फिर वो 2 सप्लायर को पार्ट टू इस तरीके से आप सप्लायर को डेवलप करते हैं एंड देन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आपका हो जाता है। तो आपको पता रहता है कि इसको बोलेंगे तो सामान तो होता है, ठीक है, क्योंकि उससे भी अपना कैपिटल उससे फंसा के रखा है और उसको भी मालूम है कि बिजली वाला है। तो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट द सोर्स ऑफ सप्लाई, कि आप कैसे वेक्टर जनरेट करेंगे, कैसे उनसे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और कैसे आपको ऑन टाइम जो भी देना है वो आपको। Okay. Thank you everyone. See you tomorrow. We'll study Thank you, ma'am. other theory, equity theory tomorrow. Okay. Thank you, मतलब होता है एंड चेंज